Hello student, how are you? This is Ruby Rajput and I welcome you all. Today we are going to learn about an advertisement writing of a writing section. Student, as you all know, advertisement is very important for us because advertisement is a medium of communication through which we can promote our products so the consumers can opt our services, because without promoting our products, if we can sell our product, how can consumers know about our services? So the advertisement is very important for your product, because अगर आपके प्रोडक्ट को या उसकी इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाना है तो उसका एक जो बेस्ट मीडियम है वो कह सकते हैं तो एडवर्टाइजमेंट है. इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही आप अपने सर्विस को कंज्यूमर्स तक या लोगों तक पहुंचा सकते हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन आवर एडवर्टाइजमेंट राइटिंग. So student, before starting our advertisement, first I make you clear what we will going to read in this video. First we will see what is an advertisement, then its key points, then marking scheme and its types, and finally one or two examples of an advertisement. So let's start. What is an advertisement? Student, as you all know, any public notice or announcement made through mediums like newspapers, magazines, radio, television, cinema, etc., asking for services like selling or buying, lost or found, household works, to let, etc., is called an advertisement. So जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक पब्लिक अनाउंसमेंट जो कि हम न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा के द्वारा करते हैं, एक अनाउंसमेंट किस चीज़ का? सर्विसेज लाइक, ऐसे सर्विस का जैसे कि बाइंग और सेलिंग, लॉस्ट और फाउंड, हाउस होल्ड वर्क्स, टू लेट, एक्सेट्रा. इन सभी अनाउंसमेंट्स को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं. क्लियर? So what is the key points while you write an advertisement? Means what point should you have to remember while you writing an advertisement? First of all, no use of grammar. That means advertisement में grammar का ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है. दैट मीन्स अगर आपको इसकी टेंशन हो कि ग्रामर मिस्टेक हो जाएगा, किस तरह से इसको लिखा जाएगा, ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो काफ़ी सारे होंगे, तो ये टेंशन आपको माइंड से निकाल देना है, बिकॉज इसमें ग्रामर का यूज़ नहीं किया जाता है. जैसे एज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इसमें मायने नहीं रखते. शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स और एज पर गिवन वर्ड लिमिट. दैट मीन्स उसकी जो वर्ड लिमिटेशन है वो 50 वर्ड्स की होनी चाहिए. शुड बी इनसाइड बॉक्स बिकॉज इट मेक्स इट अट्रैक्टिव एंड कैची. Means you have to remember that your advertisement is always inside the box. Means आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है और उसके अंदर ही अपना एडवर्टाइजमेंट लिखना है. ये क्या होता है, इससे काफ़ी जो आपका एडवर्टाइजमेंट वो अट्रैक्टिव और कैची नज़र आता है. नेक्स्ट पॉइंट है हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड कैची लेटर्स. जो आपका हेडिंग होगा वो बोल्ड होना चाहिए और कैची मतलब लोगों को आकर्षित करे, इस तरह से आपका जो हेडिंग है वो होना चाहिए. सो स्टूडेंट, हियर इन दिस स्लाइड यू कैन सी द मार्किंग स्कीम ऑफ एडवर्टाइजमेंट. सो टोटल मार्क्स इज 5. फॉर द फॉर्मेट you will get 1 mark, and your format will be suitable, classification, specific, for example situation, vacant, to let, wanted, etc.
and for content you will get 3 marks. Your content will be proper, like subject, matter along with contact number and address. And for expression you will get 1 marks. In expression you have to follow the rule of spelling accuracy and suitable style. Spelling accuracy, that means आप जो भी स्पेलिंग या जो भी वर्ड लिख रहे हैं वो पूरी एक्यूरेसी के साथ में आपको लिखनी है. स्पेलिंग एक्यूरेसी होना चाहिए. और दूसरा सूटेबल स्टाइल, आपका जो वे ऑफ राइटिंग स्टाइल है वो भी प्रॉपर होना चाहिए. सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में. सो हियर इन दिस स्लाइड वी हैव टू सी अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. So you can see here 2 types of advertisement. First, classified advertisement and the second one is commercial advertisement. तो जो ये commercial advertisement है इसे display advertisement भी कहते हैं. So we will learn about these 2 advertisement in the next slide in detail. So student, here in this slide we are going to learn about classified advertisement. What is a classified advertisement? Mostly it is categorized into columns of newspaper or magazines according to different classes and the category is stated at the top. आप सभी जानते हैं कि जो आपके घर न्यूज़पेपर आता है उसमें एक पेज जो है वो एडवर्टाइजमेंट का पेज होता है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अगर आपके घर न्यूज़पेपर आता हो तो. उस पेज को क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जिसमें काफ़ी सारे एड्स आपको देखने को मिलते हैं हर टाइप के. ये एडवर्टाइजमेंट जो लिखे होते हैं इसमें नो ब्लॉक, नो स्पेसिफिक डिज़ाइन, मीन्स कोई भी ब्लॉक्स नहीं होते हैं, कोई डिज़ाइन नहीं होता है इसमें. दे आर रिटन इन शॉर्ट, फैक्चुअल, कैची फ्रेजेस एंड वर्ड्स. ओनली कैची फ्रेजेस और वर्ड्स के ज़रिए ये एडवर्टाइजमेंट लिखी गई होती है. दे आर स्मॉल, काफ़ी छोटे छोटे कॉलम्स में ये एडवर्टाइजमेंट लिखे होते हैं. नॉर्मली इनटू द वर्ड लिमिट. कंसाइज दैट मीन्स यू आर गिविंग एन इंफॉर्मेशन विथ अ वर्ड लिमिटेशन, मीन्स फ्यू वर्ड्स के अंदर आप कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को अगर दे रहे हैं तो उसे कंसाइज कहते हैं. एंड टू द पॉइंट एज ईच एंड एवरी वर्ड इज चार्ज. और इस पेज में दिया गया कोई भी एडवर्टाइजमेंट और उसका ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो चार्ज किया जाता है. दैट मीन्स अगर आप कोई ऐड देना चाहते हैं तो आपको उसका जो चार्ज है वो पे करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक इट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक इज़ वेरी ईजी. दैट मीन्स पब्लिक के लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अवेलेबल करवाना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि सभी के घर न्यूज़पेपर्स आते हैं. तो आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स के अंदर इस तरह का जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है वो आप देख सकते हैं. So student, here in this slide you can see about the types of classified advertisement. First, situation vacant. Second, situation wanted. Third, sell and purchase of property, vehicles, house, old goods, etc. Fourth one is to let. Fifth one, educational institutions. 6, lost and found. 7, travels and tours. 8, business proposals. 9, missing. And last, matrimonials. Matrimonials means for marriage purpose. So student, इन सभी टॉपिक्स को जो है हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर शामिल करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट हैं वे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाने जाते हैं. So student, let's see one example of a classified advertisement. So here you can see our example is your brother has been missing from your home for the last 2 days. Draft an advertisement for a local newspaper providing necessary details and offer a reward. तो इसके बारे में हमें
एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करनी है. सो लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट. So student, first of all you have to prepare a box for your advertisement. Then at the top of your box you have to write heading topic, which is missing person. Then your content should be clear, very small, means word limitation का आपको ध्यान रखना है. सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है. मिसिंग अ बॉय, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि एक जो लड़का है वो खोया है, तो मिसिंग अ बॉय. विकास कुमार उसका नाम, 14 years old, 5.3 inch tall, fair complexion, उसका जो कलर है वो बताया है, ब्लू आइज. ही वॉज wearing blue t-shirt and blue jeans, wearing specs and has a scar on his forehead. मीन्स उसके फिज़िकल और थोड़ा सा उसके जो कॉम्प्लेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देंगे. इन्फॉर्मर विल बी ड्यूली रिवॉर्डेड, मीन्स इन्फॉर्मेशन देने वाले को रिवॉर्ड दिया जाएगा, किसी भी तरह का वो रिवॉर्ड हो सकता है. इन्फॉर्म विराटनगर पुलिस स्टेशन, और कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है. तो इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको प्रिपेयर करना होता है. So student, here in this slide we are going to see about what are commercial advertisement means. Commercial advertisement is a second type of advertisement. Guys, जो ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है बेसिकली, या मोस्टली कह सकते हैं कि जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है वही ज़्यादातर पूछा जाता है. बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी इसलिए बताया था कि बाय चांस कभी पूछ लिया जाए तो आप उसे स्किप ना करें, छोड़े ना, इसलिए मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए इसे क्लियर करने की कोशिश की है. सो होप यू अंडरस्टूड वेल. सो स्टूडेंट, हियर आर the meaning of commercial advertisement. First, these are normally done for a commercial or business purpose. Commercial और business purpose के लिए ये यूज़ किया जाता है. Second is commercial advertisement are inserted by big companies, manufacturers और organizations etc. Means इनके ज़रिए ही ये commercial advertisements दिए जाते हैं. Next है basically are used for promotion of brands, products and services. अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को प्रमोट करने के लिए इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट है दे डिफ़र इन साइज़ एज पर रिक्वायरमेंट. मीन्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी साइज़ को आप स्मॉल या फिर बिग इस तरह का कन्वर्ट कर सकते हैं. आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह का इसका साइज़ आपको प्रिपेयर करना होता है या फिर आप दे सकते हैं, बना सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो दीज आर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. मीन्स अगर प्राइस की बारे में बात करें तो ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है उसके कंपैरिजन में ये कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है. Here in this slide you can see one example of a commercial advertisement, which is you are working for an advertising agency, draft an attractive advertisement for a summer sale of garments of a garment shop to be published in a local daily. Invent necessary details. So student, इस इंफॉर्मेशन को लेकर आपको एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करनी है फॉर अ गारमेंट शॉप. सो लेट्स सी हाउ टू राइट an advertisement of a garment shop. So student, here in this slide you can see one example of a commercial advertisement. In this advertisement, this advertisement is basically same like that poster making.
मीन्स पोस्टर की तरह ये दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जिसमें वर्ड लिमिटेशन जो है वो कम होती है और जो पिक्चर्स है, इमेजेस है, वो ज़्यादा यूज़ की जाती है इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट में। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अपने कंज्यूमर्स को, अपने बायर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं और देखने में काफ़ी कैची नज़र आते हैं। आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और आप इन्हें पढ़ने के लिए, इनकी तरफ या इनके जो प्रोडक्ट है उनको लेने के लिए आप काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। So student, here I finished my video. If you have any query regarding advertisement writing, you can ask me. So student, meet you next week. Thank you for watching the video. Goodbye. Take care.